अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं रूटीन के मुताबिक आज आपके साथ सनाफी शहबाज। तो बेटा जी, कामयाबियों के सफ़र को समेटते हुए आपके साथ अगली वीडियो शेयर करना चाहूँगा। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और फॉलो भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। बेटा जी, आज हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो उर्दू है और क्लास है फर्स्ट ईयर की उर्दू से। आज हिस्सा बे जो ग्रामर है आपसे उसके बारे में इंशाल्लाह आज मैं शेयर करूंगा। और उसमें मेरे पास है आज जो अदबी इस्तिलाहात हैं, ग्रामर से अदबी इस्तिलाहात, उसमें तशबीह, इस्तिआरा, तलमीह, ये तीन चीज़ें आती हैं। तो आज इन तीनों में से आपसे मैं तशबीह को इंशाल्लाह डीपली आपसे डिस्कस करूंगा, शेयर करूंगा। गौर से सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के उस बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो बेटा जी, क्लास है फर्स्ट ईयर और सब्जेक्ट है मेरे पास उर्दू। और बोर्ड पैटर्न के मुताबिक बेटा जी इसके कुल 100 नंबर है। तो बेटा जी, आज हिस्सा दो में जो आज आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा वो है अदबी इस्तिलाहात। वो है अदबी इस्तिलाहात। तो बेटा याद रखिएगा, अदबी इस्तिलाहात में मेरे पास तीन चीजें हैं। पहली चीज है तशबीह और दूसरी चीज है मेरे पास इस्तिआरा और तीसरी चीज है तलमीह। पहली चीज तशबीह, दूसरी चीज इस्तिआरा और तीसरी चीज तलमीह। तो बेटा जी, आज मैं आपसे जो शेयर करूंगा वो चीज है मेरे पास है तशबीह। सबसे पहले बेटा हमें ये सेन में रखना है कि तशबीह किसे कहते हैं। तशबीह का मतलब होता है तशबीह का मतलब होता है किसी मुश्तरका खूबी की वजह से, किसी मुश्तरका खूबी की वजह से एक चीज को दूसरी चीज के साथ तशबीह देना। जी, किसी मुश्तरका खूबी की वजह से एक चीज को दूसरी चीज के साथ तशबीह देना। बेटा ये क्या है? तशबीह। आप बेटा याद रखिएगा, आगे हमारे पास इस तशबीह की 5 कैटेगरीज हैं, 5 अकसाम हैं। 1, 2, 3, 4 और ये 5 पांच अकसाम है तशबीह की। बेटा जी, पहली है मुशब्बा, दूसरी को कहते हैं मुशब्बा भी और तीसरी को कहते हैं वजह तशबीह और चौथी को कहते हैं हरफे तशबीह और पांचवी को कहते हैं गर्से तशबीह।
تو بیٹا یہ 5 اقسام میں نے ان کے نام آپ کے سامنے ذکر کیے. تشبیہ کی 5 اقسام. پہلی مشبہ، دوسری مشبہ بھی، تیسری وجہ تشبیہ، چوتھی حرف تشبیہ، اور 5ویں غرض تشبیہ. 5 اقسام ہے جی بیٹا. اب مشبہ کسے کہتے ہیں؟ ان میں سے ہر ایک کی جو ڈیفینیشن ہے انتہائی شارٹ فارم میں آپ کے سامنے وہ ذکر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنا، سیکھنا اور اس کو ہضم کرنا آسان ہو جائے. تو غور سے بیٹا مشبہ کہتے ہیں جس چیز کو تشبیہ دی جائے، جس چیز کو تشبیہ دی جائے. مشبہ بھی کہتے ہیں جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جائے. اور حرف تشبیہ کا مطلب ہے جس حرف سے تشبیہ دی جائے، جس حرف سے تشبیہ دی جائے. اور وجہ تشبیہ جس وجہ سے تشبیہ دی جائے، اور حرف تشبیہ میں آئے گا جس حرف سے تشبیہ دی جائے. جس وجہ تشبیہ میں جس وجہ سے، حرف تشبیہ میں جس حرف سے تشبیہ دی جائے، جس حرف سے تشبیہ دی جائے. اور غرض تشبیہ کا مطلب ہے جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے، جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے، جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے. تو بیٹا جی مشبہ جس چیز کو تشبیہ دی جائے، ہم جس کی تشبیہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. مشبہ بھی جس چیز کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں. وجہ تشبیہ جس وجہ سے تشبیہ دی جائے. حرف تشبیہ جس حرف سے تشبیہ دی جائے. غرض تشبیہ جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے. اب بیٹا جی میں یہاں آپ کے سامنے ایک مثال ذکر کروں گا، تو اس مثال میں یہ 5 جو کیٹیگریز ہیں، 5 اقسام مشبہ کی، تشبیہ کی، وہ ہم اس کو اپلائی کریں گے، امپلیمنٹ کریں گے. تو بیٹا جی مثال ہے، جیسے مثال کے طور پہ خالد شیر کی طرح بہادر ہے. خالد شیر کی طرح بہادر ہے. ایک یہ مثال. دوسری مثال دلہن چاند کی طرح حسین ہے. بیٹا یہ 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے کوڈ کی ہیں. ایک ہے خالد شیر کی طرح بہادر ہے، دوسری مثال دلہن چاند کی طرح حسین ہے. تو بیٹا جی اب ہم نے یہ 5 جو اقسام ہیں، مشبہ بھی، وجہ تشبیہ، حرف تشبیہ، غرض تشبیہ، ان 5 کو ان پر امپلیمنٹ کرنا ہے، ان پر اپلائی کرنا ہے. بڑی ہی آسان بات ہے بیٹا جی، توجہ سے بات کو سنیے گا جی. اب پہلی چیز ہے، ہم نے شیر کی طرح بہادر کہا کس کو؟ خالد کو. تو خالد ہمارے پاس کیا ہوا؟ مشبہ. کیونکہ خالد کی تشبیہ دی ہے نا، جس چیز کو تشبیہ دی وہ خالد ہے. خالد مشبہ. اب خالد کی تشبیہ ہم کس کے ساتھ دے رہے ہیں؟ شیر کے ساتھ. تو شیر کیا ہوا؟ شیر ہوا مشبہ بھی. اچھا، اب خالد کو شیر کے ساتھ جو ہم تشبیہ دے رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ جی بہادر ہے. تو وجہ تشبیہ کیا ہوئی جی؟ وہ بہادر. تو جی خالد کے اندر بھی لڑائی ہو رہی تھی، تو اس نے بہادری دکھائی، وہ جیت گیا. تو اس کا مطلب شیر کے اندر بھی بہادری ہے، تو خالد کے اندر بھی وہی چیز کامن پائی گئی، ایک جیسی مشترکہ چیز ہے، خوبی ہے. تو ہم نے کہہ دیا پھر بہادر ہونا کیا ہے؟ یہ وجہ تشبیہ. اچھا، اب خالد کو شیر کی طرح بہادر کہا، یہاں حرف کیا ہے؟ تو بیٹا کی طرح یاد رکھیں، یہ کیا ہے؟ حرف تشبیہ. حرف کیا ہے؟ یہ کی طرح کیا ہے؟ حرف تشبیہ. اچھا یاد رکھیے گا، جو غرض تشبیہ ہوتی ہے
मिसाल में लफ्जों में नहीं होती, मिसाल में लफ्जों में नहीं होती, लेकिन हमने उसको जज करना है, उस मिसाल से हमें बात वाज़े क्या हुई समझ के आती है। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखें मिसाल है, हमारे पास ये मिसाल है कि खालिद शेर की तरह बहादुर है। हमने इसमें हमें समझ क्या आई भाई, समझ ये आई है कि जो खालिद साहब है ना, खालिद साहब वो क्या है, वो ताकतवर, खालिद क्या है जी, वो ताकतवर है। तो बेटा ये जो ताकतवर खालिद का होने हमें समझ आया, जो कि लफ्जों में नहीं था, हमने कॉमन सेंस से इसको समझा। याद रखिए ये क्या चीज हुई, ये गर्ज तशबीह। तो ये ताकतवर होना ये क्या चीज हुई, गर्ज तशबीह। उम्मीद है बेटा ये बात समझ आ गई होगी। एक और मिसाल से ना देखिएगा, बात और आसान हो जाएगी। अब दुल्हन चांद की तरह हसीन है। अब दुल्हन क्या है जी, मुशब्बा, दुल्हन वो क्या जी, मुशब्बा। चांद, दुल्हन को चांद की तरह हमने हसीन कहा, चांद क्या हुआ, मुशब्बा भी। की तरह ये क्या चीज हुई, हरफे तशबीह। और हसीन होना ये क्या जी, ये क्या हुई, वजह, ये वजह तशबीह। तो बेटा बिल्कुल जिस तरह ऊपर वाली मिसाल में हमने ये बात जज की थी कि खालिद शेर की तरह बहादुर है, हमें समझ क्या आई इस मिसाल से, तो समझ ये आई कि खालिद साहब क्या है, वो बड़े ताकतवर है। तो हमने यहाँ इस मिसाल में ये चीज देखनी है कि दुल्हन चांद की तरह हसीन है। तो इसमें हम कहना क्या चाहते हैं, बात कहना क्या, करना क्या चाहते हैं, तो गौर से तो समझ जाए कि दुल्हन की हम खूबसूरती बताना चाह रहे हैं। चांद भी हसीन है और इधर क्या है जी, दुल्हन जो है वो भी क्या हसीन है, वो भी खूबसूरत है। तो लिहाजा दुल्हन का खूबसूरत होना, या इस पूरी मिसाल से हमें बात क्या समझ आती है कि जी दुल्हन यहाँ क्या है जी, वो बड़ी खूबसूरत है, दुल्हन वो बड़ी खूबसूरत है। तो बेटा ये जुमला, ये लफ्ज खूबसूरत होना, ये लफ्ज में मौजूद नहीं था, हमने कॉमन सेंस से इसको समझा। तो फिर ये खूबसूरत होना क्या चीज हुई बेटा, ये हमारे पास गर्ज तशबीह है। ये हमारे पास गर्ज तशबीह है कि दुल्हन को चांद की तरह तशबीह देने का मकसद क्या था, वो दुल्हन का खूबसूरत होना वो बताया जा रहा था। वो दुल्हन पर एक शेर मुझे याद आता है, वो कहते हैं वो आए भी तो कौन सा एहसान कर गए, वो आए भी तो कौन सा एहसान कर गए, ना बैठे ना बिठाए परेशान कर गए। तो बेटा वो चीज है। तो बहरहाल उम्मीद है आज के बेटा हमारा जो टॉपिक था वो अच्छे से समझ आ गया होगा कि हिस्सा दोम अदबी इस्तिलाहात, और उसमें 3 चीजें थी, तशबीह, इस्तिआरा, तलमी। तो आज के इस लेक्चर में जो मैंने डीपली आपसे डिस्कस किया बेटा, वो चीज थी तशबीह, और उसकी 5 अकसाम थी, और उसकी 2 मिसालों से बात को वाज़ेह किया। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो जाते जाते बेटा जी मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, और आगे शेयर भी करें, और फॉलो भी जरूर कीजिए, और अगली वीडियो का इंतजार भी कीजिए। और जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।